Not yet. Extremely sorry. So we solved that question, right? And वाला question solve किया था हम लोगों ने. And then we solved question related to this gramophone. Was this gramophone वाला question over कि नहीं? नहीं किया था क्या हम लोगों ने? शायद नहीं किया था. Please unmute and answer. सर नहीं किया था. Okay, so basically we have to solve 3 to 4 questions more, and then we will begin with the topic. Okay, so the first. Okay, everyone. जैसे घर पहुंचोगे तैसे ऑन कर देना. So the first question that I'm going to solve is nothing but this one. That is a pendulum consisting of massless string of length 20 centimeter and tiny bob blah 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 blah. I want you to read the given data about this particular sum very carefully. Okay. ये हुआ था क्या बॉब का सम? ये भी मेरे को याद नहीं आ रहा. नहीं, चलो कोई बात नहीं. Why don't you try to write down the given data? We'll solve that later on. Hello. Ready? Let's try to solve this particular question with excitement, with energy. क्या करेंगे देखो, पहले क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है विल ट्राई टू राइट इट डाउन. जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं किया उनको वीडियो ऑन करना है. बार बार आपको ये सेम चीज नहीं भूलनी पड़नी चाहिए. क्या बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन में? अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ मासलेस स्ट्रिंग of length 20 centimeter. That is the length of this particular pendulum is 20 centimeter. Okay, let me write the given data. So first length is 20 centimeter. You can convert it into meter. It will become 0.2 meter. And a tiny bob of mass 100 gram. So mass is given as 100 gram. 100 gram मतलब 0.1 kg होता है. I have converted it as per my requirement. It's set up as a conical pendulum. So the system is actually of conical pendulum. They are asking or they are telling us its bob now performs 75 rpm. So what is the revolution per minute? 75. So you have n equals to 75 rpm. Using n, you can easily calculate omega, that is 2 pi n upon 60. So you can write it as 2 pi into 75 upon 60. Okay. Now you need to solve this particular thing. You have to make it look easy. Okay, Ricky. So you can now solve it like this. 2 ones are 230 जो भी है. फिर 25, एक्चुअली 25 से डिविजिबल करना चाहिए था. 25 से तो नहीं होगा, 15 से हो जाएगा. So 15 4s are 15 5s are and 2 2s are 5 by 2. So what do we get omega as? We get omega as 5 by 2 rad per second. Okay बनता. तो आपको ओमेगा का वैल्यू मिल गया. Now what next?
they are saying ki calculate kinetic energy and increase in gravitational potential energy. So the first unknown thing that they want is nothing but kinetic energy, and the second unknown thing that they want is delta P, that is change in potential energy. Make sure and understand that it is not potential energy, it is change in the potential energy. That means बॉब का पोजीशन कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है, उस चेंज का उन्होंने पोटेंशियल एनर्जी पूछा है. ओके, we'll try to work on that later on. Delta P क्या होता है? First we will try to find out kinetic energy. Now how to find out kinetic energy? Well, actually it is very simple if you know the conical pendulum. So this is how it looks like. This is conical pendulum, this is its bottom. ये conical pendulum पहले हम लोग ऊपर लेके आते हैं, and then this pendulum actually whirls in a circular orbit, है ना? ऐसा ही कुछ होता है, मतलब यही हम लोगों ने पढ़ा था कि ये circular orbit में move होता है. My point over here is very simple, that there will be a velocity associated with this circle. Let's say this velocity is this tangential velocity, है ना? सर आप velocity के बारे में क्यों सोच रहे हो? Because they are asking you for kinetic energy, correct? And जब भी kinetic energy पूछते हैं, पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में कौन सा आता है? What is the formula of kinetic energy? Yes, half mv square. हाफ लिखा, मास लिखा 0.1, v स्क्वायर लटक गयो. जहां पे हम लोग लटक जाते हैं, हम लोग सोचते हैं और किसी फॉर्मूला के बारे में. यही मेथड है, एंड तक मैं यही फॉलो करूंगा, अनलेस किसी सम में कुछ अलग कंसेप्ट यूज हो रहा है. आई कैन सी दैट इट इज हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर पे लटका, मैं सोचूंगा अभी आगे क्या करूं. करेक्ट? सो आई विल थिंक v स्क्वायर क्या कर सकता हूं मैं. अभी आप बताओ क्या कर सकता हूं. वंश, राघव, राघव तो खाना खा रहा है शायद. अश्विन, आपका कैमरा ब्लैक दिख रहा है, प्रॉपर दिखना चाहिए. मैत्री, जो भी है कैमरा ऑन कीजिए फटाफट. ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने लिखा v स्क्वायर लटके बराबर. एनी अदर फॉर्मूला दैट यू थिंक, जब भी आपको कोनिकल पेंडुलम याद आता है, कोई सिखाया था और कोई फॉर्मूला? याद करो, याद करो, याद करो. tan theta regarding tan L by theta. G. tan theta equals to v square by rg. ये फॉर्मूला एक सिखाया था मैंने तुमको. तो once you know that v square will be equals to rg tan theta. No problem with that. तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऊपर पुट करूंगा v square के जगह. So now your kinetic energy will be half into 0.1 into rg tan theta. अभी इसमें से क्या क्या known है वो देखते हैं. The only thing known over here is g, that is acceleration due to gravity. Value of acceleration due to gravity is 10. So if I put 10 into 0.1 1 होगा. Indirectly you will get 1/2. And बचा क्या? r tan theta. क्या फिर लटके? Yes. Why लटके? Because we don't know value of r, we don't know value of theta. तो मुझे कुछ भी करके एक ही अननोन रखना है इस इक्वेशन में. I need to replace this r somehow, or I need to replace this tan theta somehow. मुझे कुछ भी करके एक चीज को निकाल ही देना है. तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये ट्राइंगल को देखता हूँ, जरा एकदम मस्त ऑब्जर्व करता हूँ. पहले देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो अपने को आया है, इट इज नथिंग बट हाफ r. L is equal to r cos theta ऐसा कुछ था ना. Ah, correct. We will use that. So if you look at the diagram that is created by this particular triangle, you know that this angle is theta, and what is going to happen if this particular angle is theta? This particular distance is r, and L होगा L होगा, H होगा, करेक्ट ना? सो अभी मैं क्या करता हूँ, R को रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ. बट एज यू कैन सी R sin थीटा, मतलब sin थीटा के फॉर्मूला में R आ जाएगा. सो यू कैन फाइंड आउट sin थीटा. sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस R by L. सो R विल बी इक्वल्स टू L sin थीटा. मिल गया? तो अभी क्या करोगे आप, R को यहाँ पे पुट करोगे. So your kinetic energy will now become half, R के जगह आएगा L sin theta into tan theta. देखो मैं वही अपना प्रोसेस सेम टू सेम फॉलो कर रहा हूँ. आई एम नॉट डूइंग समथिंग स्पेशल. ओके, नाउ द अननोन थिंग ओवर हियर इज थीटा. L तो आपको मिल जाएगा ना, अभी L तो दिया है आपको, गिवन है, दैट इज 0.2. So you get kinetic energy equals to half
into 0.2 into sin theta into tan theta. ओके, फिर लटके, क्यों लटके? क्योंकि एंगल पता नहीं। एंड दिस इज वेयर द ट्रबल बिगिंस। मतलब अभी तक सर कुछ नहीं, अभी तक का ट्रबल नहीं लगा आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर था, वी स्क्वायर आपको पता नहीं, वी स्क्वायर आर जी टेन थीटा था, आपने पुट किया, आर लटक गए, आर लटका तो आर को रिप्लेस किया एल साइन थीटा में, साइन थीटा कॉस टेन थीटा आ गया। अभी क्या करोगे? अभी फिर फंसे। एंड इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ टाइम पीरियड, वंश कैमरा ऑन कीजिए। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम? व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम बाय द वे? 2 pi root L by G. नहीं, 2 पाई रूट एल कॉस थीटा बाई, तो उसमें कॉस थीटा होता है, तो यू कैन यूज दैट थीटा एंड पुट इट ओवर हियर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा होल्ड पे रखता हूँ, है ना, इसको 1 बोलता हूँ। राघव बोल रहे हैं एच के टर्म्स में हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, डेफिनेटली एच के टर्म्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। Sir, but H का वैल्यू नहीं है ना। हाँ वही तो प्रॉब्लम है ना, वो तो फिर पहले एच निकालो, फिर कॉस थीटा में पुट करो, वही सेम हिसाब बराबर वही होने वाला है। अभी कॉस थीटा के लिए आपको टाइम पीरियड चाहिए, बट आपके पास टाइम पीरियड है नहीं, बट उन्होंने ओमेगा दिया है, बराबर। ये क्वेश्चन ना बहुत गंदा क्वेश्चन है, ट्रस्ट में, इसीलिए आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, टफ लगेगा। टाइम पीरियड, और ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, मैंने किधर से बाहर से अपने मन से नहीं लाए। टाइम पीरियड कितना दिया है नहीं पता अपने को, ओमेगा पता है, ओमेगा है 5 पाई बाई 2, करेक्ट। वी नो दैट ओमेगा इज एक्चुअली 5 पाई बाई 2। ओमेगा से टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं? ओमेगा से टाइम पीरियड, इज देयर एनी 2 pi by रिलेशन? T. Yes, omega is 2 pi by t. So instead of omega, you can put 5 pi by 2. यहाँ पे हो जाएगा 2 pi by t. So what is going to happen? Pi cancel, correct? Now you can take t to the other side. तो टाइम पीरियड हो जाता है 4 by 5, मिल गया टाइम पीरियड। नेक्स्ट स्टेप, टाइम पीरियड होता है 2 pi अंडर रूट ऑफ l cos theta upon g. Don't forget that our ultimate goal is to find out the value of cos theta. So I will try to keep cos theta at one side. Squaring both the side, you will get t square equals to 4 pi square L cos theta upon g. अच्छा, how many of you know that pi square and g का value approximately same आता है? pi square is approximately g. आप try करके देखो। हाँ pi सर, उन्होंने पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 लेने बोला है। हाँ, तो और g का वैल्यू भी हम लोग 10 ही लेते हैं, तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। ओके, नाउ द ओनली रिमेनिंग थिंग इज cos थीटा, सो cos थीटा विल बी t स्क्वायर अपॉन 4l। ओके, इट्स हेल ऑफ अ सम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपको समझेगा, अंदाजा आएगा। अभी t का वैल्यू क्या हो गया? t का वैल्यू अपने निकाला है 4/5, सो वी विल राइट 4/5 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू एल। एल का वैल्यू भी आपको नोन है, लेंथ का, दैट इज 0.2 cos theta. You will solve it, you will get the answer. So cos theta will be 16 upon 25, नीचे ब्रैकेट ऑलरेडी 4 है, इंटू 0.2 है। ओके, आप इसको सॉल्व करोगे ना, आपको आंसर आएगा 0.8। करके देखो, cos theta आया 0.8। You can easily find out theta using log table. So this will become cos inverse of 0.8 and the answer is 36.8 degree. ओके, तो आपको एंगल कितना आया? 36.8। Finally we are done with angle and now we can put that angle in equation number 1. Substituting angle in 1. So our kinetic energy is gonna become half into 0.2 into sine of 36.8 into हाँ tan 36.8, मतलब एंगल भी, and there is no alternate way to solve this। एंगल लॉग से, मतलब लॉग टेबल में एक टेबल होता है नेचुरल कोसाइन, उधर से मिलेगा तेरे को। अभी ये काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो गया, इसको सॉल्व करोगे ना आप, इवन इफ यू सॉल्व इट ऑन कैलकुलेटर, यू गेट आंसर एज 0.045 जूल। सो द आंसर गिवन इन द टेक्स्ट बुक ओवर हियर इज रॉन्ग। तो ये आंसर नहीं आता, आंसर आता है 0.045 जूल। ओके, आई हैव वेरीड इट, आई वेरिफाइड इट। तो गलत है सर ना ये सर बोर्ड का उधर। क्वेश्चन है ना।
हाँ हाँ भाई, सच्ची में बोर्ड्स का क्वेश्चन है। अगर ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो तेरा टेक्स्ट बुक ओपन करके 17 क्वेश्चन दे। गलत है ना सर, नहीं फिर सर, उधर जो दिया है हाँ, 0.45। ये रॉन्ग है, काइनेटिक एनर्जी रॉन्ग है, इक्वेशन ही रॉन्ग है। ओके, अभी ये हो गया पहला वाला पार्ट, काइनेटिक एनर्जी। सर पहला वाला पार्ट, ओके हाँ। अभी सेकेंड पार्ट करेंगे। नाउ दे आर आस्किंग फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज डेल्टा पी। हाउ कैन वी फाइंड इट आउट? सो आई हैव अ शॉर्टकट फॉर्मूला, बट अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला डिराइव कैसे किया। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टीच यू शॉर्टकट फॉर्मूला। तो शॉर्टकट फॉर्मूला इज mgl 1 minus cos theta. दिस फॉर्मूला इज द वन जिसके ऊपर जेई में इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ पेंडुलम। सो m का वैल्यू यू नो दैट इज 0.1, g का वैल्यू 10, l का वैल्यू 0.2, 1 माइनस cos थीटा इज 0.8। cos थीटा का वैल्यू 0.8 आया था, उसी से हमने थीटा निकाला था, डोंट फॉरगेट। ओके, सो वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट 0.04 जूल एज फाइनल आंसर। तो ये आपका चेंज इन पोटेंशियल है। सर ये थोड़ा अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया। अभी आपको बताता हूँ फॉर्मूला कैसे डिराइव किया, फिर अच्छा लगना बंद हो जाएगा। ओके, सो वी ट्राई टू सी हाउ दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला इज डिराइव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर दिस पर्टिकुलर कैमरा। सर तो फॉर्मूला ये नहीं अप्लाई कर सकते इस सब क्वेश्चन के लिए? क्या बोल रहा है? ये जो आपने ऊपर जो फॉर्मूला किया वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं ना, आराम डेल्टा से, पी का? हाँ। हाँ आराम से। किसने बोला कि ये नहीं करना है? ओके, तो सी, समझो ये आपका पेंडुलम है। ये पेंडुलम पहले यहाँ पे, वर्ल होने से पहले ये थोड़ा सा ऊपर उठता है। सो दैट मीन्स उसका हाइट कितने से बदला? सो उसका हाइट बदला बाय दिस मार्जिन। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल हाइट फॉर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेट्स कॉल इट एज डेल्टा एच, या फिर जो भी बोलना है, ठीक है चलो डेल्टा एच बोलते हैं। अभी आपको ये डेल्टा एच फाइंड आउट करना है, कैसे करोगे? सो डेल्टा एच विल बी दिस ओरिजिनल लेंथ एल माइनस दिस छोटू सा लेंथ एक्स। पहले समझते हैं, धीरे धीरे जाते हैं। ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड स्मूथली। आपको डेल्टा एच चाहिए, क्यों? बिकॉज पेंडुलम का पोजीशन इज चेंजिंग एंड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन पोजीशन यू गेट पोटेंशियल एनर्जी। सो मतलब लाइक ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी फ्लक्चुएट होगा। तो डेल्टा पीई इज एक्चुअली एम जी इंटू डेल्टा एच। एंड आपने अब भी नोटिस किया कि डेल्टा एच इज एक्चुअली दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ, सो दैट इज एक्चुअली एल माइनस एक्स। अभी L तो ठीक है आपको पता है, बट X पता नहीं। तो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना क्रिएट अ ट्रायंगल ओवर हियर। ओके, यू सी दिस पर्टिकुलर एंगल इज थीटा एंड वी नो दैट ये जो लेंथ है, ये लेंथ भी L ही होता है, करेक्ट? सो कैन यू फाइंड आउट दिस साइड? ये साइड फाइंड आउट कर सकते हो? टेल मी गाइस, कैन यू फाइंड इट आउट? यस सर, cos थीटा अप्लाई। cos थीटा अप्लाई कर सकते हैं। सो लेट अस अप्लाई cos थीटा। cos थीटा क्या तो होगा? सर एडजेसेंट, x इज इक्वल एडजेसेंट टू l cos एक्स थीटा बाय, आएगा। हाँ। तो एडजेसेंट क्या है अपना? ये x है, तो ये भी साइड क्या है? x ही है। तो एडजेसेंट थीटा हो जाएगा विच इज x बाय l। सो योर x विल बी इक्वल्स टू l cos थीटा। So instead of this x, we can write l cos theta. So this become l minus l cos theta. We can take l common and we get 1 minus cos theta over here. ये हो गया आपका डेल्टा एच। अभी इस डेल्टा एच को ऊपर पुट करोगे, सो योर फॉर्मूला इज mgl 1 minus cos theta. Okay, this formula they haven't even mentioned in the board का टेक्स्ट बुक। ओके, टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया भी नहीं और फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। दैट इज व्हाई आई सेड कि ये लाइक बहुत ही क्रेजी लेवल के न्यूमेरिकल्स डाले। अनुराग कैमरा ऑन करना है, अगर ऑन है तो मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ अभी कैसा हुआ? वेरी गुड। ब्लैक स्क्रीन अपने आप नहीं आता, कुछ तो जुगाड़ करने के बाद आता है। हाँ, आ गया ये डेल्टा पी का वैल्यू। वेरी गुड, आई होप आपको ये सम समझा है। किसी को डाउट है कुछ इसमें? नहीं, चलो लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन।
या यार ये क्वेश्चंस ऐसे है ना कि मतलब क्या बोले हम लोग। Okay, I want you to read the question, write down the given data and draw the diagram if possible for you. I want you to do these things. Read the question carefully. At least 2 बार read करो, एक बार में दिमाग में नहीं घुसेगा. Write down the data and then after that draw the diagram if possible. यश वीडियो ऑफ है हो गया तेरा? वीडियो ऑन रहना चाहिए. ओके, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ रहा है. ओके चलो, लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. कैसे सॉल्व करना है? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क. हैव यू हर्ड अबाउट ग्रामोफोन? ओल्ड पीपल और यू सेड अपने कंट्री में तो ग्रामोफोन ज्यादा चला नहीं, बट दे यूज्ड टू प्ले दिस मच बिग डिस्क एंड उस डिस्क के ऊपर ना वो ग्रामोफोन यूज करते थे, वो पॉइंटर रखते थे. सर वो ना गोल्ड कलर का. हाँ, गोल्ड ही नहीं होता, लाइक सम सॉल्व कर रहे हैं यशस्वी, और इट्स लिटिल बिट डिफरेंट, मतलब लाइक अलग अलग वैरायटी होते हैं. हाँ वही, बट गोल्ड कलर में मोस्ट ऑफ द टाइम 1920 में होता था वो, वही ग्रामोफोन. पॉइंट ये है कि वो ग्रामोफोन का जो डिस्क होता है ना वो घूमते रहता है ऐसे नीचे. ओके, सो ग्रामोफोन का डिस्क है, उसका जो रेडियस है इज 0, सॉरी रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है लेट्स से दैट इज म्यू is 0.5. okay, then radius is 8 centimeter. Initially the center of the coin is pi centimeter away from the center of the disc. तो coin का center and disc का center pi centimeter away है. तो मैं ना क्या करता हूँ, मैं वही अपना ग्रामोफोन क्रिएट करता हूँ और इस ग्रामोफोन पे एक कॉइन रखता हूँ. पहले एक कॉइन ग्रामोफोन का सेंटर है और इससे समवॉट 5 सेंटीमीटर अवे एक कॉइन है, ये कंसेप्ट बोल रहे हैं. तो क्या बोला, डिस्क है, डिस्क के सेंटर से पाई सेंटीमीटर, पाई इज गिवन एज अ डिस्टेंस. सर ऐसे कैसे, पाई को कैसे, अरे पाई नंबर है रे, 3.14. अगर मैं बोलता 3.14 सेंटीमीटर दूर तो तेरे को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, पाई बोला तो प्रॉब्लम आ गया, ऐसे थोड़ी चलेगा, है ना. तो पाई सेंटीमीटर अवे है from the center of disk. At what minimum frequency will it start slipping from there? Frequency मतलब indirectly they are asking us for n. तो आप n का ऐसा वैल्यू बताओ जिसमें वो कॉइन स्लिप होना चालू हो जाए. अभी ये स्लिप होना का कंसेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ, आपका पूरा ध्यान यहाँ पे चाहिए, पूरा इमेजिनेशन होना चाहिए.
समझो आपके पास एक डिस्क है, अरे वाह, आई हैव अ प्लेट, ओके। नाउ व्हाट इज गोना हैपन, दिस पर्टिकुलर प्लेट को ग्रामोफोन डिस्क की तरह ट्रीट करो, ओके। सो व्हाट इज गोना हैपन इफ आई whirl दिस पर्टिकुलर डिस्क, ये घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, समथिंग लाइक दैट, एंड जब तक ये स्लो है कॉइन वहां पे स्टिक रहेगा, but as soon as it starts swirling at a very high speed, what is gonna happen, कॉइन आउटवर्ड थ्रो किया जाएगा। लॉजिकल चीज है, अपने को निकालना है कि मिनिमम ऐसा कौन सा वैल्यू है, और यू कुड से मिनिमम मतलब ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी है रोटेशन का कि जब तक कॉइन डिस्क के ऊपर ही रहेगा। जैसे ये फ्रीक्वेंसी अचीव होता है कॉइन बाहर, मतलब रोटेशन इतने होने के बाद कॉइन बाहर चला जाएगा। सो वी नो दैट इट विल बी अ ग्रेटर वैल्यू, बट कितना ग्रेट वो फाइंड आउट करना। क्या यहाँ तक क्वेश्चन समझा? यस सर। सर सो इज इट कि हम लोग ये डेटा से पहले टाइम निकालेंगे, फिर टाइम का रेसिप्रोकल से हमें फ्रीक्वेंसी आएगा, कि कोई और फॉर्मूला है? ना ना ना, वी विल यूज क्या बोलते रहे हम लोग, कंजर्वेशन नहीं, ये का पार्ट बोलो ना सर, क्या फाइंड करना है? रोटेशन मतलब कितने रोटेशंस होने पे कितना उसका उतना उसका फ्रीक्वेंसी होने के बाद कॉइन बाहर चला जाएगा। It's like we know that if it rotates fast, the coin will be thrown out. But exact number क्या है कि कितने rotation के बाद वो throw out होगा coin. That's what we want to find out. मतलब rotation मतलब revolution per minute. If we put our finger at the middle of the fan, our finger, yes, correct. Raj is giving one example. अगर समझो आप आपका फिंगर रोटेटिंग फैन के मिडल में रखोगे तो फिंगर आउटवर्ड फेंका जाने की कोशिश करता है, मतलब ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि आपका फिंगर आउटवर्ड जा रहा है। सो लेट अस ट्राई टू क्रिएट सम फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल मी कि ये जो कॉइन है वो कौन से फोर्सेस एक्सपीरियंस करेगा, बताओ। कॉइन कॉइन ये जो कॉइन दिख रहा है ये कॉइन के ऊपर कौन से फोर्सेस होंगे? यस प्रथम करेक्ट, mg। एनी अदर फोर्स? एन। नॉर्मल करेक्ट, Centrifugal. सेंट्रीपिटल। centripetal force correct, which will provide centripetal force? द डिस्क। A disc correct, यस। that is frictional force। अरे डिस्क कैसे फ्रिक्शनल, मैंने बोल दिया आंसर रिवील कर दिया, सो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ओके बस। सी वी आर नॉट लुकिंग फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपना अप्रोच ही अलग है ना, सो वी आर नॉट गोना फोकस ऑन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेट्स फोकस ऑन फ्रिक्शनल फोर्स कैसे? कॉइन और डिस्क के बीच में रेजिस्टेंस नहीं होगा, कॉइन डिस्क घूम रहा है ना फास्ट नीचे, यस। ओके। तो वी आर डन विद दिस, वही अपना सेम घिसा-पिटा मेथड, सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय ब्ला 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 ब्ला, ऐसा है ना, वही वाला यूज करेंगे। सो वी नो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन बाय म्यू एन, ओके। अब इसमें से म्यू का वैल्यू क्या है, म्यू का वैल्यू उन्होंने दिया है, देखो कितना है 0.5। we don't have value of n though, we can find it out by using this logic, that is n is balanced by mg, so we can use n equals to mg। अच्छा रुको रुको, सेंट्रीपिटल फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है ना, mv² by r, तो we can use that formula, but since they are asking for सर n, वी कहाँ है हमारे? हाँ v नहीं है ना, तो since they are asking for n we can use this formula m omega square r, ओमेगा वाला इंस्टेड ऑफ v, ओके। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। रुको एक मिनट, पहले इक्वेशन ही डिराइव कर। सेकेंड, अलोंग y एक्सिस देखोगे तो n एंड mg आर गेटिंग बैलेंस्ड विद ईच अदर, let it be equation number 2। What I can do in the next step is that substituting 2 in equation number 1, so we can write m omega square r equals to mu mg। After that what we can do, we can cancel out m, once we are done we get omega square equals to mu g upon r। तो आपका ओमेगा कितना आया, अंडर रूट ऑफ mu g upon r। mu is 0.5, g is 10 and r is given as pi। r मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन दोस टू ऑब्जेक्ट्स ना, तो डिस्टेंस दिया है पाई। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। हे भगवान, रुको कैलसी पे करते हैं।
1.26 समथिंग आ रहा है. This is 1.261 rad per second. But this is not what they ask for ना, अपने को frequency निकालना है. Let us calculate in RPS, क्योंकि उन्होंने RPS में पूछा है. वैसे आप RPM में भी निकालोगे तो भी wrong नहीं है, because they have not asked it like in question. RPS होता है 2 pi n, ओमेगा का वैल्यू लिखो, फिर 1.261 इक्वल्स टू 2 pi, तो ये आपको देगा n. Let's call calculate 1.261 divided by 2 pi. मेरे को आंसर 0.1 RPM आ रहा है. ओके, 0.1 RPS आ रहा है. दैट मीन्स एक सेकेंड में 0.2 रिवॉल्यूशन होता है. एंड 0.2 इज आई गेस, अरे रॉन्ग आ रहा है क्या? 0.2 रॉन्ग आ रहा है मेरा. सर क्वेश्चन में जी का वैल्यू पाई स्क्वायर लेने को बोला है. वो तो चल जाएगा. देख, पाई स्क्वायर मतलब भी 10 है, उसमें क्या रॉन्ग क्या जा रहा है वो मेरे को नहीं समझ रहा. अरे कन्वर्जन पाई सेंटीमीटर में है ना, मैंने मीटर में नहीं कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे पाई इंटू 10⁻⁻2 आएगा. देखा, एक सिंपल सी गलती की वजह से. $12.96 आ रहा है, फिर 12.61 आ रहा है. आप बोलोगे ये 12.61 से क्या फर्क पड़ेगा? बहुत पड़ेगा. तो अभी अगर समझो यहाँ पे 12.61 दूंगा तो आंसर 2 RPS आएगा ना, अप्रोक्सीमेटली 2 RPS, मतलब एक सेकेंड में 2 रिवॉल्यूशन. क्या यहाँ तक आपको समझा क्या किया मैंने गाइस? एनीवन हैज डाउट देन आस्क मी. मैंने कॉइन कंसीडर किया और उस कॉइन के ऊपर फोर्सेस कंसीडर किए. अरे बोल यस और नो, समझा कि नहीं? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. क्योंकि सर. सेकंड पार्ट आपको करना है. सेकंड पार्ट में क्या बोला है? बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम. मतलब कॉइन रिम पे, रिम मत समझते हो, डिस्क का एंडिंग वाला जो पार्ट होता है ना, कॉइन वहां पे है. ये रिम है और आपका जो कॉइन है ना वो यहाँ पे है. चलो फाइंड आउट करो इसका फ्रीक्वेंसी. जैसे मैंने पाई वाले डिस्टेंस के लिए फाइंड आउट किया था ना, वैसे आप इसके लिए फाइंड आउट करो. प्रॉपरली फोर्सेस बेसिस बनाना. ये डिस्टेंस कितना होगा मेरे को पता नहीं, आपने गिवन डेटा आई गेस लिखा ही होगा, तो यू कैन नाउ सॉल्व इट. मतलब पहले कॉइन क्लोज था, अभी कॉइन को हम लोगों ने अवे रख दिया. देन व्हाट विल बी द चेंज, वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. आपको प्रीवियस देखना है, ये लो क्वेश्चन रेफर के लिए. सर एक बार एंड वाला सोल्यूशन दिखाओ ना, मतलब फर्स्ट इसका. ओके सर.
ओके, किसी को आया आंसर? कौन नहीं सॉल्व कर रहा है, जरा देखने दो मेरे को। ओके, जय, डू यू हैव डाउट? Yes, sir. बोल Sir, बोल। sir, can you scroll to the previous slide? यस, यू आर अलाउड टू यूज question- कैलकुलेटर। हाँ बोलना, इसमें क्या डाउट है? नहीं सर, मुझे वो क्वेश्चन जो है मुझे वो एक बार देख। ओके, डन सर। ओके, you can type the answer once you get. और 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड लिखो। सर ओमेगा सेम ही रहेगा ना? ओमेगा सेम सेम ही रहेगा ना? नहीं, ओमेगा चेंज होगा ना। नहीं, ओमेगा भी चेंज होगा। हाँ, क्योंकि डिस्टेंस चेंज होगा। हाँ, ओमेगा ही तो निकालना है पहले, N2 निकालने के लिए नया वाला। सर वो लास्ट वाला ही लिखा हूँ, वो मैं अभी कॉपी कर रहा हूँ उसका वो डेटा। लास्ट 1 मिनट। सर थोड़ा नीचे। सर उसको डिनोमिनेटर में आपने 10⁻⁻² क्यों दिया पाई का? सेंटीमीटर में था ना, दैट इज वाई। क्या बोल रहा है? सच्ची है यार, वो आंसर आ रहा है? मेरे को तो आइडिया ही नहीं है। ठीक है, शैल वी सॉल्व इट? मेरे को एक ही आंसर आया, अपार्ट फ्रॉम दैट नो वन सॉल्व्ड इट। क्या फर्क है? अभी आपका रेडियस चेंज हो जाएगा, बराबर। दिस विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर राइट नाउ। कैमरा ऑन करो जिसने भी बंद किया है। तो आपने पता है ओमेगा का फॉर्मूला अब भी डिराइव किया, अब भी अंडर रूट ऑफ म्यू जी बाय आर। यू गोना यूज द सेम फॉर्मूला ओवर हियर, करेक्ट? सो लेट्स यूज इट। अभी म्यू का वैल्यू गिवन एज 0.5, जी का वैल्यू 10 एंड आर का वैल्यू इज 8 सेंटीमीटर और 8 इंटू 10⁻² मीटर। ओके, तो व्हाट इज गोना हैपन, 0.5 को हाफ लिखेंगे, 8 को एज इट इज, एंड ये जो है ना पावर 10⁻², उसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10⁻3 हो जाएगा। तो व्हाट इज गोना हैपन, दिस इज गोना बिकम 10⁻3 अपॉन 16। 16 का स्क्वायर रूट बाहर आके 4 बचा, अंदर बचा अंडर रूट ऑफ 10³ और 1000।
तो इधर से आप ना ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, और यू कुड राइट इट लाइक दिस, 1/4 एज इट इज लिखो, 10 क्यूब को ऐसे लिखते हैं 10 स्क्वायर इंटू 10, सो यू कैन टेक द 10 स्क्वायर आउटसाइड, ये बचेगा 10, इधर बचा अंडर रूट ऑफ 10। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n अपॉन 60। ओके, नाउ यू नीड टू जस्ट कैलकुलेट इट। याद है उन्होंने क्या बोला, पाई स्क्वायर को 10 ले लो, बराबर, तो पाई कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ 10, वी कैन कैंसल दैट ओवर हियर, हो गया। अभी देखो क्या बचा, 2n2 अपॉन 60 इक्वल्स टू 10/4 विच इज नथिंग बट 5/2। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, n2 will be 5 into 60 upon 2 into 2, so n2 will be equivalent to, कुछ गड़बड़ किया लगता है मैंने, अरे अपॉन 60 नहीं लेना चाहिए क्योंकि हम लोग हाँ आरपीएस मैं वही पूछने वाला था कि एक सर क्वेश्चन में दिया है क्या कि आरपीएम में। गलती क्या है वो, 5/4 इज द आंसर, n2 मेरा है क्या, अभी भी रॉन्ग किया है मैंने, मेरा n2 5/4 आ रहा है। तो आपको पता है, आपको 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 जो N1 दिया है वो कितना दिया है, 2 आरपीएस दिया है, एंड N2 जो आया वो कितना आया है, 5/4 आरपीएस है। उन्होंने क्या पूछा कि N2 और N1 इज हाउ मच टाइम्स अदर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं लिखता हूँ N1 इज, क्या पूछा एग्जैक्टली मेरे को पढ़ने दो, by what factor will the answer change if the coin is almost at the rim? Okay, तो मेरे को N2 को N1 के टर्म्स में फाइंड आउट करना है, so N2 will be equals to x times N1, ऐसा लेते हैं। मुझे ये फाइंड आउट करना है कि कितने से बदल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सिंपल एक आइडिया डिस्कस करते हैं, समझो कि पहले आपका N1 था 10, ओके, फिर वो हो गया 20, तो कौन से फैक्टर से चेंज हुआ, 2, बिकॉज डबल हो रहा है। गेटिंग द लॉजिक, सो यू विल राइट n2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स n1, तभी तो आपको 2 into 10 मतलब 20 आएगा। सो सेम कंसेप्ट यहाँ पे आई एम अप्लाइंग, n2 इक्वल्स टू x टाइम n1, n2 इज 5/4, x इज अननोन, x इज अननोन है ना, हाँ, and n1 is nothing but 2. So if you solve it, you will get x equals to 5/8, and this is your final answer. So the factor is 5/8. तो इन्होंने जो भी आंसर सॉल्व किए हैं ना वो रॉन्ग है। यहाँ पे मैंने n1 निकाला है इसीलिए 8/5 आया, n2 होता तो 5/8 होता। क्या क्वेश्चन समझा, इज इट क्लियर, किसी को डाउट है तो पूछो। तो सर वो लोग ने क्या आंसर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन उन्होंने तो उनका पहला n1 ही रॉन्ग है 2.5, उसके बाद n2 1/2 n1 आता है, ये भी इनका रॉन्ग क्वेश्चन है। मेरे को समझता नहीं है, अगर अगर आप आपसे सही से सॉल्व होते नहीं तो इतने गंदे गंदे न्यूमेरिकल क्यों देते हो स्टूडेंट्स को। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सर्कुलर। एक्चुअली दो है बट मैं इसमें से एक ही सॉल्व करूंगा, एक आप होमवर्क करना 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 इज योर होमवर्क, मार्क इट डाउन। Okay, last question for circular motion. After that, we will start with CET. So those people who are for board can exit after this particular question. Okay, this is your question. I want you to write given data. बोर्ड्स वालों का लाइफ मस्त है, हाँ। अगर उन्होंने कुछ और डिसाइड, बट वो तो सिर्फ बोर्ड्स थोड़ी करेंगे, उन्होंने मे भी कुछ और डिसाइड किया होगा ना।
Okay, I hope you have written the given data. Let's verify. A motorcyclist, treat him as a particle, is undergoing vertical circle inside a sphere of death. The speed of motorcycle varies between 6 and 10. अभी सीन कैसे होता है कि मोटरसाइकिल का ना वैल्यू जो है ना वो बदलते रहता है, तो 6 और 10 के बीच में उसका फ्लक्चुएशन चालू है, एंड दैट इज व्हाई आई डोंट हैव द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. So what I will do, I will, instead of calculating v1 and v2, I will calculate average velocity. So v1 plus v2 upon 2 will be the net or average velocity. जैसे एवरेज निकालते हैं ना आपके मार्क्स दो सब्जेक्ट के अपॉन 2, वैसे ही किया, कुछ बड़ा नहीं किया. So 6 plus 10 upon 2 will be 16 by 2 will be 8 meter per second. Done. Okay. Calculate diameter of the sphere. पहले तो आपको diameter निकालना है, मतलब d. How much minimum values are possible for these two speeds? मतलब आपको lowest speed calculate करना है and आपको highest speed calculate करना है ना? एक मिनट. How much तो सर minimum? वो 6 उसका मोटरसाइकिल का मिनिमम स्पीड नहीं है ना, वो बस एक वैल्यू है ना जिसमें हो जाता है. हाँ एक ही मिनट है. हाँ 6 उसका एक्चुअली उन्होंने मिनिमम एंड मैक्सिमम ही वैल्यू दिया है, बट वो कैसे, मतलब एग्जैक्टली ऐसे नहीं बोल सकता तू. बिकॉज मिनिमम बोलेंगे तो फिर सर 6 के नीचे जाएगा कैसे? हाँ अरे, like what I can say ना, the question wrongly framed है. The question should be like this: calculate the speed in case of the vehicle at the top and vehicle at the bottom. समझा? क्योंकि अगर इसको ये ऑलरेडी 6 को लो वैल्यू बोल रहे हैं, तो उसका मिनिमम कैसे आएगा? बराबर है तेरा? हाँ Getting वही ना? सर. हाँ तो वही, लाइक बेसिकली क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन ने रॉन्ग फ्रेम किया है. अभी क्या बोले हम, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है. एवरेज स्पीड तो आपको मिल गया. पहले बात तो आर का डेटा आपको पता नहीं है, बट वी कैन इमेजिन द सिनारियो. करेक्ट? तो समझो ये हुआ आपका स्फीयर ऑफ डेथ. तो जब राइडर ऊपर था तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, जब वो नीचे आता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है. वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी. हाँ रे जय, पता नहीं यार, दे हैव मेड लाइक स्टूपिडेस्ट नोट फॉर सर्कुलर मोशन न्यूमेरिकल, और सिलेक्शन भी बहुत लाइक गंदा वाला दिया है. अगर मतलब एक आधा क्वेश्चन टफ होता और बाकी के प्रॉपरली कंसेप्चुअल होते तो बात अलग है, बट सारे के सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछे जो आपने बोर्ड्स में कंसेप्ट ही नहीं सीखा है. अगर आप कंसेप्ट सिखा के देन क्वेश्चन पूछते हो उसके ऊपर, देन इट्स अ प्रॉपर बुक. बट दिस इज वाई आई हैव, मतलब लाइक मेरे को थोड़ा सा आपको भी समझने को ट्रबल आएगा कि कंसेप्ट बोर्ड्स में सिखाया नहीं है, डायरेक्ट सम में दिया है. सो पोटेंशियल एनर्जी होता है mg, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर. बराबर ना? अभी देखो ये डिस्टेंस कितना है, 2 टाइम्स रेडियस. दैट मीन्स अपना हाइट कितना हुआ पोटेंशियल एनर्जी के लिए? वो पोटेंशियल और काइनेटिक वाला वापस से बोलो कैसा है? जब ऑब्जेक्ट टॉप पे होता है ना, तो मैंने कंसिडर किया कि इट हैज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. नाउ दिस मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी लेट्स से गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो मैंने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल लगाया. क्यों लगाया तुझे अभी पता चलेगा. तो सर mgh. बॉटम में मैक्सिमम काइनेटिक होगा ना, अभी जीरो mg, पोटेंशियल. हाँ h के जगह क्या आएगा, डायमीटर आएगा. प्रतीक्षा, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? सो mgd आएगा हाफ. प्रेक्षा, हाँ बराबर समझा तुझे, इंटू m इंटू वी स्क्वायर. अभी देखो कैंसलेशन करते हैं कुछ, m गया. ओके, फिर यू कैन राइट d इक्वल्स टू हाफ वी स्क्वायर बाय g. अभी v कितना दिया है अपने को, v एवरेज 8 आया. 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 2 इंटू g का वैल्यू 10, सो दैट इज 32 अपॉन 2. सो 32 अपॉन 2 नहीं, सॉरी 32 अपॉन 10. 32 अपॉन 10 इज 3.2, तो ये 3.2 मीटर डायमीटर हुआ. देखो आपका पहला आंसर रेडी, 3.2 मीटर इज, इट्स डन. आफ्टर दैट they are asking for speed at the top and at the bottom. आपको पता है सर्कुलर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टॉप का स्पीड कितना होता है? VCM में टॉप का स्पीड कितना होता है? रूट, फॉर्मूला आपने डिराइव क्या? अरे टॉप में फॉर्मूला कितना होता है VCM में? 2gh. अरे कुछ भी यार, V 3 वेलोसिटीज पढ़े थे हम लोगों ने, टॉप बॉटम एंड मिडवे, वो पूछ रहा हूँ. यस यस यस. टॉप में कितना होता है?
पढ़ के नहीं आए मतलब। बॉटम में कितना होता है, मिडवे में कितना होता है? आरजी रूट आरजी तो हाँ अभी 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 रूट आर जी, तो वी टॉप होता है रूट आर जी। अभी आपको रेडियस कितना आया 1.6 इंटू जी का वैल्यू 10, दैट विल बी रूट 16 विच इज नथिंग बट 4। एंड बॉटम का स्पीड कितना होगा? तो बॉटम का स्पीड 5, हाँ 5 आर जी। यू कैन राइट इट एज रूट 5 इंटू रूट आर जी, बट रूट आर जी तो 4 है, तो 4 रूट 5 इज द मैक्सिमम स्पीड। तो ये टॉप एंड बॉटम आपको मिल गया। क्या क्लियर हुआ? आंसर्स देखो मैच हो रहे हैं, तो मतलब उन्होंने क्वेश्चन रॉन्ग फ्रेम किया है। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? अरे सर अगर बट मैक्सिमम वेलोसिटी 4 इंटू रूट 5 है और रूट 5 का वैल्यू कुछ 2.2 जितना आता है, तो 4 इंटू 2.2 करने भी जाए तो 8.8 जितना होता है, तो फिर जो मोटरसाइकिलिस्ट 10 मीटर पर सेकंड पे कैसे चला रहा है? हाँ क्वेश्चन में झोल है रे। हाँ मैंने अभी नोटिस किया। और इज इट लाइक दैट कि दे आर सेइंग कि वो 10 मैक्स जा रहा है, बट वो बोल रहे हैं कि 10 अटेंड कर रहा है, तो वो 10 का लोएस्ट सर स्पीड कितना होगा? मिनिमम वैल्यू के लिए आपने एक अलग से फॉर्मूला दिया था ना, कौन सा? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो तो निकालने के लिए, एंगल तो ऑफ वो यही बैंकिंग था। का था। अच्छा, वो एंगल ऑफ बैंकिंग का था। तो ये इसमें टॉप और बॉटम इन द सेंस टॉप मतलब मैक्स वैल्यू है और बॉटम मतलब मिनिमम स्पीड वाला वैल्यू। टॉप मतलब मिनिमम वैल्यू, बॉटम पे मैक्सिमम स्पीड होगा ना। ओके, हाँ मतलब आप हाइट पोजीशन के हिसाब से बोल रहे हो टॉप और बॉटम। तो ये स्पीड लगा, पोजीशन बोल रहा हूँ मैं, बट इस सब में बहुत झोल है रे। चलो लेट्स लीव इट, दैट्स इट फॉर सर्कुलर मोशन का सम्स। एक सम होमवर्क दिया है, वी विल एंड बोर्ड्स का लेक्चर टुडे, एंड दैट इज व्हाई आई एम गोना stop the recording.